Hello students, welcome to Statisticspedia. Now today we will consider the questions which are related to your descriptive statistics. This video is basically the short and summarized form, एक sort of revision है for your entire chapter. So let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द स्क्यूनेस. सो स्क्यूनेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे आपका फ्रीक्वेंसी कर्व बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं होता ऑन आइदर ऑफ द साइड्स, दैट इज सेड टू बी अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन. सो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉइंट्स रिलेटेड होते हैं आपके स्क्यूनेस से, जैसे कि मीन मीडियन मोड को इंसाइड नहीं करता है, क्वार्टाइल्स इक्विडिस्टेंट पे नहीं होते हैं मीडियन से, फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो बैलेंस्ड नहीं रहता है, वो टिल्टेड रहता है ऑन ईदर ऑफ द साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, then we say the distribution is skewed or somewhat it is a asymmetrical distribution. Name some of the Pearson's coefficients. So Pearson's coefficient होता है आपका beta 1 and gamma 1 which will give you the skewness, and we have beta 2 and gamma 2 which will give you the kurtosis. So जो कर्व का जो नेचर होता है, जो कर्व को डिस्क्राइब करता है उसके फॉर्मेशन को, उसके लिए हम Pearson's coefficients को यूज करते हैं. When do you say that the distribution is said to be negatively skewed? तो आपको पता है we have two types of distribution, positively skewed and negatively skewed. अगर एक relation हम देखते हैं which is expressed in the terms of mean and median, तो mean if it is less than median, if it is less than mode, then we say, or in other words when mean is less than mode, तो आपका जो distribution है वो negatively skewed होता है and it is tilted towards the left side. आपका जो curve है वो stretch रहता है, bend रहता है towards the left tail of the distribution. Which measure of skewness gives the direction of skewness? So students, you have two measures which are based on moments. We have beta 1 and we have gamma 1. Beta 1 जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव मेजर होता है, मतलब beta 1 is always greater than 0, which only gives you the magnitude, जो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देता है. अगर आपका जो कर्व है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, उसके लिए हम गामा 1 कैलकुलेट करते हैं which gives you the direction of the skewness. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है कि गामा 1 इट इज रूट ऑफ बीटा 1. अगर गामा 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, इफ इट इज नेगेटिव नेगेटिवली स्क्यूड, इफ इट इज जीरो देन इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, बीटा 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस देता है, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि आपका नेचर कैसा है कर्व का, उसकी सिमेट्री कैसी है, तो फिर उसके लिए हम गामा 1 को कैलकुलेट करते हैं. Bowley's coefficient of skewness, it is based on which measure? So we have several measure of skewness, like we have Karl Pearson's measure of skewness, Bowley's measure है, Kelly's measure of skewness है. So Bowley's measure of skewness students quartiles पर based होता है, Q1, Q2 and Q3 पर. इसका जो relative measure होता है वो होता है Q3 plus Q1 minus twice of Q2 divided by Q3 minus Q1. तो ये आपका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, और बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन द क्वार्टाइल्स एंड मीडियन. मीडियन इसलिए क्योंकि मीडियन इट इज इक्विवेलेंट टू Q2. Which situations of Bowley's measure of skewness can be used? So कौन कौन से सिचुएशन में हम Bowley's measure of skewness को यूज करते हैं? यूजुअली जब आप Karl Pearson measure को यूज नहीं कर सकते, जब आपका मोड इल डिफाइंड है, राइट, तब ओपन एंड क्लासेस पे जब आपका डेटा टाइम्स आपसे लिमिट्स भी पूछते हैं, इसका जो लिमिट्स होता है वो +-1 होता है. What is the relation between the Pearson's beta coefficients? Now this is a relation that beta 2 must be greater than equals to beta 1 plus 1. ये inequality जो है वो beta 1 और beta 2 के बीच में होल्ड करती है, जो हमें पता होना चाहिए. Define alpha coefficients. Now alpha coefficients क्या होते हैं? These are based on moments. Suppose अगर हम alpha 1 की बात करते हैं, so that is mu1 upon sigma, right? So यहाँ पे mu1 हमेशा 0 होता है, so therefore alpha 1 is 0. Then alpha 2 will be mu2 upon sigma square. Now all you know that mu2 second central moment होता है which is equivalent to sigma square. So once we solve we will get value as a 1. Alpha 3 will be mu3 upon sigma q, which is nothing but it is a value of root of beta 1 which is equivalent to gamma 1.
and we have an alpha 4, that is mu 4 upon sigma 4, which is nothing but which is equal to beta 2. So sometimes आपके इंटरव्यूज में, वाइवाज में पूछ लेते हैं अल्फा कोएफिशिएंट्स. तो बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पियर्सन कोएफिशिएंट है वो अल्फा 3 और अल्फा 4 के इक्वल है, और उसका वैल्यू हम इस तरह से डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल मोमेंट एंड वेरिएंस एंड सिग्मा, इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल मोमेंट एंड सिग्मा. So these are the frequent questions students, जो हमने क्विकली एक शॉर्ट समराइज मैनर टॉसेस को कवर किया है, जो आपके वाइवा क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आपका एक सॉर्ट ऑफ रिविजन भी हो जाएगा फॉर द एंटायर चैप्टर सीरीज. यूजफुल लगे और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड कनेक्टिंग टू द चैनल. थैंक यू सो मच.